सुनना जाकर। डिपार्टमेंट इन संबलपुर यूनिवर्सिटी करने के लिए श्री मनोरंजन साहू द फेमस दैनिक फेस्टिवल्स देते हैं। इससे पहले भी काफी इवेंट्स में हमने ऐसे ही सर ठीक है, क्या सुना? उनको भी जो आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे ही कॉलेज कैंपस के अंदर ही है। ऑप्शन में कॉलेज ने जीता है, वही प्लेट हम अपने गेस्ट्स को भी देना चाहेंगे। अभी ये साल नरेंद्र मोदी के भी गले में लगा था। थैंक यू सो मच सर। और आज सुबह ऐसे इंस्पिरेशन हुआ हम उन मुंबई डब्बा वालों से बात करते हुए 10-15 मिनट अभी चारों तरफ मुंबई मुंबई नज़र आ रहा है। तो बेसिकली आई हैव डन माई PhD in the related area of supply chain management, and when I was doing this particular PhD and all, basically I have come across lot of things which I have practically learned today from my dear friend Mumbai Dabawala. And you must be knowing that there is a concept called Six Sigma. Those are management students or something, those are related to that, they might be doing. This is one of the tools, basically you can say management will basically use to judge the quality. The Six Sigma says that the defect in 1 million is only 3. Okay, and this Mumbai Dabawala, they have already achieved that particular certification, not officially, but people have come across, they have never approached. Like for example, I was talking to that particular person, and I also read from 2004 also, only to visit this Mumbai Dabawala. So that is the beauty of this Mumbai Dabawala. So what is they are basically doing? They are basically picking the dabba or the homemade food from the home, and they are delivering to the destination. Okay. What is the so beauty about that? So उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, जब मैं MBA खत्म करने के बाद जब मुंबई जॉब के लिए गया, पहला दिन, that is the first day of my in Mumbai. So what happened? So I was never knowing that local ट्रेन में ऐसे होता है. तो पहले तो जब दादर स्टेशन में तो एक दो बैग पकड़ के जब गया तो मेरे को देख के पता चल, जब मैं ट्रेन में घुस गया उसके बाद पब्लिक मेरे को देख के क्या पहली बार आया हो क्या? So no, the Mumbai has got a distinct distinction, and at the end when I was get down from the train, and automatically the TT also identified that I am the new to the particular person. What my point is that he catch hold of me. Why? Because I have entered into the first class bogie, but I was having only second class, so I was not able to know. So Mumbai में or collecting the material from the home and delivering to the customers, and as they were selling, that many things we have to learn from this particular thing. Like the Harvard Business School review has already done a lot of research into this particular field of supply chain, logistics and all. So this is very good. So you will be able to learn a lot of things from this, and there are many things are there. I have already learned from them, and you try to learn. So definitely it will give you a lot of moral boosters. Secondly, the most important point that I have learned today is that without technology, the whole business model is functioning without a single technology. So that is the beauty of that. Even today we cannot think of, people say that without technology we cannot think of the tomorrow, or we cannot live without the technology, without mobile phone.
but they do not have any kind of mobile phone or any kind of barcode technology or RFID or any other technology which is being utilized large in the logistics supply chain management and all. But they are able to prove that by means of 4 different codes. Today also I learned from them how the coding system is there. So there are people there already they have told that you have to learn a lot of things how basically they are making the codes. So it is definitely to learn from them. I have already enjoyed the session with them and also I will be able to learn a lot from them. Okay, thank you all. So I do not want to stay between the Mumbai Dabbawala and you people. So thank you all. So giving me the opportunity. Esteemed guests, thank you. Thank you. I think आपने खाना नहीं खाया शायद, right? जोर से, please loudly. नहीं खाया। Good morning all of you. Good morning. First time 2020 का first session मैं आज करने जा रहा हूँ. So before that, before going ahead, I like to say Goel sir for inviting us here because we are coming here first time, especially in education means we can say schools में colleges में हम लोग first time आ रहे हैं उड़ीसा में. But I was in Odisha last year. Last year I was there in Sambalpur. We will cover all the topic about the Dabbawalas. But before that, I would like to ask one question to all of you. Shall I ask? Yes. How many of you know about the Dabbawalas? Oh my God. It's like 75%, right? But can anyone explain what exactly we are doing in Mumbai? Anyone? What we are doing in Mumbai? Yes? लंच बॉक्स घर से पिकअप करके डेस्टिनेशन Okay. What? घर से टिफिन बॉक्स कैरियर लोगो कार्ड लेके लंच सप्लाई करते हैं. Okay. घर से टिफिन पिक करके लोगों को सप्लाई करना. Okay. From back side? No one? You all are the back benches, right? Please answer the question. Okay. Let me explain about the Dabbawalas first. What we are. Okay. So Dabbawala. So you can see here this is the official logo of Mumbai Dabbawala. So there are 3 words. You can see Mumbai, Dabba and Wala. You know. So why we are using Mumbai here? Because we provide this service only in Mumbai, not in other cities as well as not in other countries. So that's why we are using Mumbai here. And there are 2 words, Dabba and Wala. Dabba means a lunch box. So this is become Mumbai Dabbawala. Okay. So we know there are some words like Pani Puri Wala, Lokhand Wala, right? So Pani Puri Wala is selling Pani Puri, right? Lokhand Wala is selling Lokhand, but Dabba Wala is not selling Dabba. Dabba Wala Dabba बेचने का काम नहीं करते, तो we provide only delivery service to our customer. So what we are doing exactly? So we are collecting the lunch box from your home. Okay, right? Dabba deliver करना means क्या होता है? So what we are doing? That is not important. हम क्या कर रहे हैं? That is not important. But हम ये कैसे कर रहे हैं? That is important. क्योंकि डब्बा डिलीवर करना that is very easy task. But in Mumbai especially ये easy task नहीं है. So see here, it's only by helping each other you can achieve a goal. एक दूसरे की सहायता करो, you can achieve. और क्या नहीं कर पाते? Single person अपने लाइफ में क्या कर पाते या क्या नहीं कर पाते? यूनिटी किस तरह से काम करती है ये आज हम देखेंगे. Dabbawalas की यूनिटी से ये Dabbawalas का इतना सक्सेस कैसे आ गया, कैसे उन्होंने हासिल किया ये अचीवमेंट हम आज ये देखेंगे. ओके. सो बिफोर दैट ये सिस्टम स्टार्ट कैसे हुई? सो Dabbawalas की सिस्टम तो ये शुरुआत कैसे हुई थी एग्जैक्टली? कुछ पारसी लोग मुंबई में काम करते थे. पारसी लोग में से एक पारसी बंदे ने Dabbawalas से कहा, मतलब हमारे जो फाउंडर है उनसे कहा, सर क्या सर आप मेरा लंच बॉक्स मेरे घर से मेरे ऑफिस तक ला सकोगे बिकॉज मुझे ऑफिस लगेगा. तो उसी तरह उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी. तो स्टार्ट विद द 1 पर्सन 1 Dabbawalas. उन्होंने एक Dabbawalas के साथ एक कस्टमर के साथ शुरुआत की. टुडे वी हैव 5000 एम्प्लॉइज. हमारे पास 5000 लोग आज इस सर्विस में काम करते हैं और डेली हम 2 लाख बिकॉज Dabbawalas ने अंग्रेजों को भी डब्बा डिलीवर किया है और इंडियन लोगों को भी डब्बा डिलीवर किया है. So see here. So this is a little bit information about our service. ये हमारी संस्था के बारे में, मतलब हमारे बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है. हम लोग की शुरुआत हुई थी 1890 में. भारत स्वतंत्र
के बाद 1947 के बाद 1956 में इसे रजिस्टर किया गया बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर। सो डब्बा वाला ये कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये कोई कॉर्पोरेट नहीं है, ये एक ट्रस्ट है जो आज मुंबई में चलती आ रही है। टोटल हमारे पास 5000 लोग डब्बा डिलीवर करने का काम करते हैं और डेली बेसिस पर हम 2 लाख डब्बा डिलीवर करते हैं। 2 लाख डब्बा डिलीवर करना यानी कि 4 लाख ट्रांजैक्शन हम लोग दिन में करते हैं, बिकॉज हम आपके घर से डब्बा पिक करके आपके ऑफिस में डब्बा डिलीवर करते हैं। और आफ्टर ओवर लंच, आपका लंच खत्म होने के बाद, आपने सुना है जोमेटो के सॉरी अमेज़न के बारे में, फ्लिपकार्ट के बारे में? जब हम एक पार्सल ऑर्डर करते हैं तो हमें पार्सल कितने दिन में आता है? 4 दिन में आता है। वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी, हाई एजुकेटेड पीपल, राइट, प्राइवेट व्हीकल, एडवांस व्हीकल, ये सब यूज करने के बाद भी वो उनको 4 दिन लग जाते हैं एक डिलीवरी करने में। बट डब्बा वाला विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट यूजिंग एनी प्राइवेट व्हीकल, विदाउट एजुकेटेड पीपल, विदाउट यूजिंग एनी हाई टेक्नोलॉजी, विदाउट पेपर, विदाउट प्लास्टिक, विद इन 4 आवर्स डिलीवरी दे पाते हैं। किलोमीटर का दायरा डब्बा वाला कवर करते हैं। सो स्विगी और जोमेटो, आज लोग हमें कहते हैं कि स्विगी और जोमेटो ये आपके कॉम्पिटिटर है। हम कहते हैं कि ये हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है। Why? ये हमारे कॉम्पिटिटर क्यों नहीं है? बिकॉज स्विगी और जोमेटो भले ही कितने एडवांस हो, बट वो 5 किलोमीटर से ज्यादा किसी का लंच बॉक्स किसी को डिलीवर नहीं कर पाते। अगर हम ऑर्डर करते हैं तो 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपका होटल होगा, तो वहां से आपको अपना लंच मिल जाएगा। बट 5 किलोमीटर के डायरेक्ट लिए ये लोग के लिए, मतलब इन लोगों को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, एडवांस व्हीकल की जरूरत पड़ती है, हायर एजुकेटेड लोगों की जरूरत पड़ती है। इतना यूज करने के बावजूद 5 किलोमीटर कवर हो जाता है। बट डब्बा वाला की यू कैन सी द लिटरेसी लेवल, इट्स 80% सेमी लिटरेट पीपल, दे आर वर्किंग हियर। सेमी लिटरेट पीपल मतलब जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास तक जो पढ़े हैं, वो बंदे आज 100 किलोमीटर का दायरा कवर करते हैं विदाउट यूजिंग एनीथिंग। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डब्बा वाला। ना अभी सबको एक ही क्वेश्चन आता है, मुंबई एक ऐसी सिटी है जो पूरी यूनिक सिटी है, मतलब एक अलग ही सिटी है, अद्भुत सिटी है, जिसे हम लोग महानगरी सॉरी एक सपनों का शहर से नाम के जानते हैं। सपनों का शहर मतलब मुंबई कहते हैं। तो मुंबई का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुंबई इज वेरी स्मॉल सिटी। मुंबई एक छोटी सी सिटी है, 30 किलोमीटर का मुंबई का दायरा है। 30 किलोमीटर से ज्यादा मुंबई नहीं है। बट ये जो मुंबई है ये टोटली कॉर्पोरेट एरिया है। सभी के सभी जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं उनके हेड ऑफिस मुंबई में है। तो ये कॉर्पोरेट एरिया जहाँ पर लोग काम करते हैं, और जो काम करने वाले बंदे हैं वो सभी के सभी रेसिडेंशियल एरिया से ट्रैवल करते हैं। सो मुंबई के पास ऐसे 3 रेसिडेंशियल पार्ट है जहाँ पर लोग रहते हैं। हर एक सिटी में एक ही होता है, बट मुंबई के पास ऐसे 3 पार्ट है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डब्बा जस्ट वहाँ पर है, ये विरार का एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं। सेकंड दैट इज कल्याण डोंबिवली, यू कैन सी इन दिस ऑन द टॉप, एंड थर्ड वन दैट इज न्यू बॉम्बे। ऐसे 3 रेसिडेंशियल पार्ट है मुंबई में, और ये तीनों पार्ट, ये कॉर्पोरेट यहाँ पर कॉर्पोरेट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो कॉर्पोरेट ये इतना ही छोटा स्मॉल है, तो एक जगह पर आने के लिए 3 रेसिडेंशियल पार्ट से लोग एक कॉर्पोरेट एरिया में आते हैं। तो ट्रैवल कहाँ से करते हैं? तो लोकल ट्रेन से। यू कैन सी द लोकल ट्रेन इज हियर। सो लोकल ट्रेन का यूज करके लोग एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करते हैं। सो लोग विरार से लेकर चर्च गेट तक आते हैं। इट्स अराउंड 70 किलोमीटर का ये एक मतलब किलोमीटर का डिस्टेंस है। देन कल्याण डोंबिवली टू सीएसटी, इट्स अराउंड 85 किलोमीटर, एंड फाइनली न्यू बॉम्बे टू सीएसटी, ये है 85 किलोमीटर का एरिया। तो ये है मुंबई का कवरेज। तो इस तरह से मुंबई का नक्शा अलग, मुंबई का जो सिटी है वो अलग होने के कारण डब्बा वाला मुंबई में ही जॉब करते हैं, मुंबई में ही काम करते हैं। अगर आप सोचते हो कि मुझे विरार से लेकर चर्चगेट तक आना है, मुझे 80 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करना है, तो आप विद इन आवर 1 घंटे के अंदर आप पहुंच जाओगे। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि मुझे 1 घंटे के अंदर मुझे विरार में चर्चगेट पे जाना है, तो मैं जा पाता हूँ। यह है कनेक्टिविटी मुंबई की। विद इन सेकेंड्स आप कोई भी व्हीकल यूज करके आप वो जगह पर पहुंच पाते हैं। तो कनेक्टिविटी इतनी आज फास्ट है, उसी की वजह से आज डब्बा वाला मुंबई में है। और सेकेंड बात, सी घर से डब्बा पिक करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर दैट वी यूज लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, एक दूसरे से दूसरे जगह पर जाने के लिए लोकल ट्रेन का यूज किया जाता है। और फाइनली हाथ गाड़ी, डब्बा डिलीवर करने के लिए ऑफिस में हाथ गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कोई फ्यूल कंजप्शन व्हीकल आपको दिख रही है? ट्रेन इज आल्सो रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन भी इलेक्ट्रिसिटी के ही ऊपर चलती है। सो फ्यूललेस साइकिल, फ्यूललेस हैंड कार और फ्यूललेस
without paper, without plastic. That means no pollution. As well as no technology, no mobile phone. So no radiation, no pollution. Our total business is. मतलब रेडिएशन का भी फैलाया नहीं, मतलब डब्बा वाला रेडिएशन भी नहीं फैलाता, इस तरह से डब्बा वाला टोटली ग्रीन माना जाता है मुंबई में। नाउ अभी आपके मन में एक दूसरा सवाल भी होगा कि अरे मेरा ही लंच बॉक्स है, खाना भी मेरे ही घर से आने वाला है और खाने वाला भी मैं ही हूँ, तो मैं डब्बा वाला उसको क्यों हायर करूँ? मैं भी तो मेरा लंच बॉक्स मेरे साथ लेके जा सकता हूँ, राइट? बट इन मुंबई दिस इज नॉट पॉसिबल। ये मुंबई में पॉसिबल नहीं है। यू कैन सी द क्राउडेड लोकल ट्रेन, हजारों लोग खड़े हो ट्रेन चढ़ने के लिए। सो सी हाउ इट्स वर्क एक्जेक्टली। हियर इज अ बिग वीडियो। सी साउंड इज नॉट कमिंग प्लीज। सी ये मुंबई की ब्यूटी है। जो मुंबई की लोकल ट्रेन है उसे मुंबई की बैकबोन मानी जाती है। जो पीठ का जो कला होता है ना उसे बैकबोन कहते हैं, तो वो मुंबई की बैकबोन है, मुंबई की लोकल ट्रेन, राइट? तो सी ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म पर, ऑलरेडी पैक जाम है, अभी भी हजारों लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं और ये सभी के सभी बड़े बड़े कंपनी के सीईओ मैनेजर ये लोग हैं, नॉर्मल इंसान नहीं है। ये ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। सी यहाँ पर दो लीड राइट, दो रोमन में, दैट इज सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए रेड कलर में यूज किया जाता है। सो नाउ कि हम हमारा लंच बॉक्स ये क्राउड में कैरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसी की वजह से लोग आज डब्बा वाला को हायर करते हैं। तो डब्बा वाला क्या करते हैं, आपका लंच बॉक्स डब्बा वाला खुद कैरी करके यही लोकल में चढ़ के आपके ऑफिस में डब्बा डिलीवर करने का काम करते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन। That is the first reason. Second reason क्या है? तो हम इंडियन हैं, राइट? हमें घर का खाना ही अच्छा लगता है। 7 दिन के बाद ज़्यादा हम बाहर का खाना खा नहीं पाते, राइट? और मुंबई इज वन ऑफ द पॉल्यूटेड सिटी। मुंबई में पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज क्राउड की वजह से, व्हीकल की वजह से। तो ये इतने सारे पॉल्यूटेड सिटी में अगर रहना होगा तो ज़्यादा दिन बाहर का हम खा नहीं पाएंगे। तो घर का खाना हमें खाना है तो कैसे खाएंगे? कैरी तो नहीं कर पाएंगे, बट तो सो वी हैव ऑप्शन डब्बा वाला, तो लोग डब्बा वाला को हायर कर लेते हैं। तो इस तरह की मुंबई की लाइफ है। तो ये ट्रेन की आपने देखा, ये एक ट्रेन का भी एक मतलब ब्यूटी है। ये जो ट्रेन आपको आगे भी दिख रही थी, राइट? तो ये प्लेटफॉर्म पर आने के बाद सिर्फ 10 सेकंड ही रुकती है। कितने सेकंड? 10 सेकंड। सो यू हैव टू बोर्ड द ट्रेन विद इन 5 सेकंड। आपको ट्रेन में चढ़ना होगा तो 5 सेकंड के अंदर आपको चढ़ना है। अगर आपको उतरना है तो आपको चालू ट्रेन में ही उतरना है। अगर ट्रेन रुकने के बाद अगर आप उतरने जाओगे तो आप उतर नहीं पाओगे, आपको दूसरे स्टेशन पर उतर के वापस पिछले स्टेशन पे आना होगा। अगर आपको ट्रेन चढ़ना है तो जस्ट ट्रेन के दरवाजे के सामने जाके खड़े हो जाइए, लोग आएंगे और आपको अंदर ढकेल देंगे। इस तरह की मुंबई की लाइफ है। और ये जो कैपेसिटी ट्रेन की, वो कैपेसिटी कितनी है? एक कंपार्टमेंट की कैपेसिटी है 300 लोगों की में, वो दूसरी ट्रेन आती है उतने लोग उतरते हैं। तो 3 मिनट के अंदर वो हजारों लोग वहां से गायब भी हो जाते हैं। तो इतनी फास्ट आज मुंबई है, विद इन सेकंड्स, एक सेकंड मुंबई कितना इंपॉर्टेंट। नो मार्केटिंग, ओनली वन वर्टिकल स्ट्रक्चर भी है। एक ही स्ट्रक्चर है जो पूरे 5000 लोगों को मैनेज करता है। क्योंकि कॉर्पोरेट में कैसे होता है कि 100 लोगों को अगर मैनेज करना होगा तो 12 लोगों की टीम होती है जो 100 लोगों को मैनेज करती है। बट यहाँ पर 5000 लोगों को मैनेज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों की ही टीम है। एक्चुअली ये काम किस तरह से होता है? बिकॉज़ यू नो देयर आर टू पार्ट्स इन बिजनेस। 2 पार्ट होते हैं बिजनेस में, इंटरनल और एक्सटर्नल, राइट? सो एक्सटर्नल मतलब क्या? एक्सपेंशन करना, मार्केटिंग करना, बिजनेस को बढ़ाना, बिजनेस को अदर सिटीज में लेके आना, ये होता है एक्सपेंशन। तो ये जो टोटली जो काम है ये हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स करते हैं। और सेकंड पार्ट है हमारा एसोसिएशन का। जो एसोसिएशन है वो टोटली इंटरनल पार्ट को मैनेज करने का काम करती है। दैट इज रिगार्डिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट, न्यू मतलब न्यू बंदे को हायर करना, न्यू कस्टमर को ज्वाइन करना, उनके मतलब न्यू कस्टमर को मतलब वो सब चेक करना। जैसे हम बोलते हैं कि एक पॉलिसी होती है कि न्यू कस्टमर जब हम ज्वाइन होते हैं तो उनकी सब देखते हैं कि वो कहाँ से आते हैं, किस ऑफिस में जाएंगे, ये सब केवाईसी करना एक्चुअली। तो केवाईसी करने के लिए भी डब्बा वाला क्या करते हैं? बिकॉज कोई भी किसी भी इंसान का डब्बा वाला डब्बा डिलीवर नहीं करते। कोई भी आ सकता है और कोई भी कुछ भी डब्बे में डाल के दे सकता है, राइट? कोई भी अगर कोई टेरेस के बम डाल के किसी एरिया में भी दे सकता है। तो ये सब चेक किया जाता है कि ये बंदा किस बिल्डिंग से रहता है, किस कॉर्पोरेट में काम करते हैं। तो ये सब चेक करने के बाद उस बंदे की सर्विस स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर आपको एक बताना चाहूंगा, अगर आप सुबह 8 बजे फोन कर देते हो किसी डब्बा वाला को तो आपकी
स्टार्ट की जा सकती है। So, within So now, how do they do it? ये कैसे कर पाते हैं? क्योंकि दिस इज टोटली हार्ड वर्क। साइकिल चलाना कोई बड़ी बात मतलब कोई आसान बात नहीं है। आपको एक डब्बे वाले को मिनिमम 30 लंच बॉक्स कैरी करने होते हैं। 30 लंच बॉक्स एक डब्बा वाला कैरी करते हैं। सो 30 लंच बॉक्स दैट मींस अराउंड 40 केजी, 40-50 किलो का आपका वेट एक कार्टन जो हाथ गाड़ी के ऊपर रखे, वो कार्टन सिर के ऊपर रखकर डब्बा वाला ट्रेन में चढ़ते हैं। तो ये सब करना होता है। वो कार्टन का जो वेट होता है वो मैक्सिमम 80 किलोग्राम, मिनिमम 40 किलोग्राम। तो ये इतना वेट उठा के ट्रेन में चढ़ना होता है इतने क्राउडेड लोकल में। तो ये आसान काम नहीं है। कुछ भी करने के लिए आप तैयार होते हो। तो सेम थिंग आपको कॉर्पोरेट में भी यूज करना है कि आप जब अपने कलीग्स मतलब देखो कॉर्पोरेट में नॉर्मली होता क्या एग्जैक्टली, जब कोई भी एम्प्लॉय मतलब कंपनी में जब जॉब करते हैं तो वो लोग काम करते हैं सिर्फ 8 घंटे के लिए, राइट। 8 घंटे के लिए काम करते हैं तो पैसे का सोचते हैं। 8 घंटे से ज्यादा आप 1 घंटे भी उनको बोलते हैं कि आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो वो बंदे का दिमाग उलट चल जाता है, मतलब रिप्लेस हो जाता है। अरे यार मुझे ये बॉस ने क्यों रुका है, ये कंपनी ऐसी है, मुझे ऐसे ही काम करवा के देती है, राइट। तो ये हो गया आपका, तो आपका सो दैट इज लेस इंटरनल एक्सेलेंस पावर। आप अपने कंपनी के बारे में सोचते नहीं हो, आपको कुछ अपने काम की पड़ी भी नहीं है, आपको सिर्फ 8 घंटा काम करके पैसा लेके आपको जाना है, तो आपका डेडिकेशन वहां पर 0% है। कि डब्बावालास में इंटरनल एक्सेलेंस लेवल कितनी है, कितनी है? जैसे आई टोल्ड यू कि हाई इंटरनल एक्सेलेंस प्लस हाई एक्सटर्नल एक्सेलेंस दैट इज एक्सेम्पलरी परफॉर्मेंस, हाई एक्सेम्पलरी परफॉर्मेंस, राइट। सो इंटरनल एक्सेलेंस इन्होंने डब्बावालास की फोटोनिक एनर्जी कैलकुलेट करके उन्होंने रिजल्ट निकाला था कि डब्बावालास की इंटरनल एक्सेलेंस लेवल कितनी है। सो नाउ यू कैन सी हियर दैट इज द इंटरनल एक्सेलेंस लेवल। सो इंटरनल एक्सेलेंस लेवल कैलकुलेट होती है अपने एनर्जी सोर्स पर। हमारी बॉडी में 6 एनर्जी सोर्स होते हैं, उसके ऊपर ये इंटरनल एक्सेलेंस पावर कैलकुलेट होती है। सो यू कैन सी हियर 93%, 96, 92%, 95, 94, 96%. So ये है डब्बावालास की इंटरनल एक्सेलेंस पावर, दैट इज मोर देन 90%, राइट। So that is 99.9997% accurate है। So high internal excellence. So what we learn from that? See, high internal excellence plus high external excellence, that is equal to exemplary performance. So अगर किसी को exemplary performance अचीव करना होगा तो ये दो चीजों पर आपको ज्यादातर ध्यान देना होगा। So now, how you improve your internal excellence level, right? Internal excellence level हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? So there are 3 ways. So first, that is the bhakti power. भक्ति मीन्स डिवोशनल, टोटली भगवान को मानना है, फिर भगवान के रिलेटेड मतलब वो सोच को हमारे बिजनेस में लाना। बट देयर इज नो एनी कोर्स, वहां पर कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि आपकी भक्ति पावर को इंप्रूव करे, राइट। सो भक्ति आइदर यू हैव इट और यू डोंट, आपके पास वो होती है या फिर नहीं। इट्स कम फ्रॉम द चाइल्डहुड, ये बचपन से ही हमारे अंदर आ जाती है, हमारे घर से, मतलब वो रिलेशन से हमारे में आ जाती है। सो ये तो रैशनल माइंडेड लोगों के लिए तो ये ऑप्शन नहीं है। सो देयर आर अनदर 2 ऑप्शन, दैट इज राज योगा एंड मेडिटेशन। So through the meditation और योगा करने से हम हमारी इंटरनल एक्सेलेंस पावर बढ़ा सकते हैं, राइट। सो हमें क्या करना चाहिए? योगा, मेडिटेशन, उसको यूज करके इंटरनल एक्सेलेंस पावर बढ़ाइए। सो आपको पता है जो इंटरनल एक्सेलेंस लेवल है वो नॉर्मल कॉर्पोरेट में जो बंदे काम करते हैं उन लोगों की कितनी है? दैट इज बिलो 70%। 70% से नीचे उनकी इंटरनल एक्सेलेंस लेवल काम करती है। सो अगर 70% के नीचे अगर उनकी इंटरनल एक्सेलेंस लेवल होगी, आप 100 और नहीं पता है तो हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। सर्विंग पीपल इज टू सर्विंग गॉड, जन सेवा यही सच्ची ईश्वर सेवा है। तो ये डब्बावालास के लिए ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमारी एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। दैट इज सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, दैट इज द अन्नदान इज महादान। अन्नदान दैट इज अ फूड डोनेशन, इज अ बिग डोनेशन। सो डब्बावालास ये भी करते हैं। एंड सेकंड वर्ड इनसाइड दैट इज आनंद इज महानंद, मींस सैटिस्फैक्शन। कितना सैटिस्फाई होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, किस तरह से हमें हमारे बॉडी को कंट्रोल करना है, ये टोटली डिपेंड होता है सैटिस्फैक्शन पर। कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन दैट इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस कोई भी करता है तो उनका मोटिव मतलब एक ही मोटिव होता है कि कस्टमर को सैटिस्फाई करो, राइट। तो उसके लिए वो भी कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसी तरह से सैटिस्फैक्शन, आपको खुद को सैटिस्फाई होना आना चाहिए, ठीक है। और व्हाई वी आर फेमस, इसको सबका होता है अंदर। और ये हो गया उसका कोड, आप देख सकते हो ये कोड के हिसाब से डब्बा डिलीवर किया जाता है और यही कोड आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है। तो कोड सिस्टम किस तरह से वर्क करती है, यही हमारी क्यूआर है। आफ्टर दैट ये लंच बॉक्स किस स्टेशन को डिलीवर किया जाएगा, ये लंच बॉक्स किस स्टेशन पर जाकर डिलीवर किया जाएगा, वो डिलीवरी स्टेशन का नाम भी इसमें ऐड किया है। आफ्टर दैट ये डब्बा डिलीवरी स्टेशन पर जाने के बाद
वहां से अगला कौन सा डब्बा वाला आगे इसे पिक करेगा, वो डब्बे वाले का नाम भी इस कोड में ऐड किया गया है। और फाइनली ये डब्बा किस बिल्डिंग में जाएगा, वो बिल्डिंग का नाम भी इस कोड में ऐड किया गया है। और फाइनली ये डब्बा किस फ्लोर पर जाके डिलीवर किया जाएगा, किस ऑफिस में डिलीवर किया जाएगा, वो कोड भी इसमें ऐड किया गया है। इमेजिन विद इन द 4 कोड, 4 कोड के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन डब्बा वाले ने फिट की है। सी so there are only 4 code E3 BLP and 9x12. with the 4 code probably we cannot make 2 lakh codes। 4 कोड के हिसाब से हम लोग 2 लाख कोड नहीं बना सकते। जब हम 2 डाइस खेलते हैं तो उसकी 36 प्रोबेबिलिटीज आती है, तो 4 कोड के साथ 2 लाख कोड बनाना मुश्किल है। तो इसी के वजह से हम लोग कलर कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं, राइट, देन नंबर्स यूज करते हैं, अल्फाबेट्स अगर टॉप में होता है तो ये लंच बॉक्स उसी कोड से पिकअप किया जाता है। मतलब टॉप कोड ऑलवेज बी अ पिकअप पॉइंट। ये लंच बॉक्स पिक किया जाएगा विले पार्ले स्टेशन से, ठीक है। तो ये लंच बॉक्स कौन पिकअप करेगा? यू कैन सी मिस्टर ई। मिस्टर ई विल पिक दिस लंच बॉक्स फ्रॉम विले पार्ले स्टेशन। ई नाम का बंदा ये लंच बॉक्स पिक करेगा, लंच बॉक्स विले पार्ले से, ठीक है। सो विले पार्ले से पिक करने के बाद ये लंच बॉक्स जाएगा चर्च गेट में। चर्च गेट में इसे डिलीवर किया जाएगा। सी द सेंटर कोड ऑलवेज गेट डेस्टिनेशन कोड। जो सेंटर में जो कोड होता है वो डेस्टिनेशन कोड होता है। तो ये लंच बॉक्स विले पार्ले से लेके चर्च गेट तक लोकल से ट्रैवल करेगा। The distance between विले पार्ले to चर्च गेट इट्स अराउंड 15 किलोमीटर। तो ये 15 किलोमीटर का दायरा ये लंच बॉक्स ट्रेन से ट्रैवल करेगा। और चर्च गेट में आने के बाद अगेन मिस्टर 9 नंबर का बंदा इसे, बट सी इट्स नॉट इजी, राइट। सो दीस आर द एग्जांपल, ठीक है। चलो अभी मैंने तो आपको कोड सिस्टम समझा दिया। सो नाउ कैन एनीवन गेस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस स्लाइड एंड दिस स्लाइड? व्हाट इज द डिफरेंस? कलर कॉम्बिनेशन फर्स्ट, ओके। सेकंड वन या पर्सन। सी कोड तो हर एक डब्बे पे अलग ही होगा, स्टेशन तो अलग ही होगा, सब कुछ अलग होगा, बट कुछ तो सिमिलर होगा, कुछ तो आपको चेंज दिखा होगा। या सी इन द फर्स्ट कोड VP is there, right? VP also stand for विले पार्ले। VP का मतलब भी विले पार्ले ही होता है और VLP का मतलब भी विले पार्ले ही होता है। So now why 2 code for 1 station? 2 कोड एक ही स्टेशन को क्यों दिए गए? You know Mumbai divided into the 2 parts for विले पार्ले west। VP means east और VLP means west। Okay, so now we have 5000 employees। So हर एक 5000, ये जो 5000 डब्बे वाले हैं उनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। हर एक ग्रुप में 10 लोग काम करते हैं और 10 में से एक बंदा होता है वो सुपरवाइजर होता है, ठीक है। हर एक ग्रुप में 10 लोग होते हैं। इसी तरह से विले पार्ले स्टेशन पर हमारे टोटल 4 लोग काम करते हैं। 4 ग्रुप काम करना मतलब 40 डब्बा वाला विले पार्ले स्टेशन पर काम करते हैं। 2 ग्रुप वेस्ट में काम करते हैं, हमारा डब्बा वाला मुंबई का हीरो है। We got 6 Sigma standard by Forbes magazine, Forbes groups in 1998. Then award felicitation invitation from various groups, BBC, Aaj Tak, CNBC, president of Virgin Group, रिचर्ड ब्रांसन जैसे डबल पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। तो उसके बाद अगर आपको डबल के साथ रहना है, अगर आपको डबल की चेन समझनी है तो आप डबल के साथ एक दिन ट्रैवल कर सकते हैं। तो उस कांसेप्ट को हमने नाम दिया अ डे विद डबल। आप डबल के साथ एक दिन के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसी का फायदा लेके सर रिचर्ड ब्रांसन डबल से मिलने आए थे और उन्होंने डबल के साथ 2 दिन ट्रैवल किया, 2 दिन सिस्टम समझा। आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में एक यूनिक लंच बॉक्स है। तो वो लंच बॉक्स उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को उन्होंने डिलीवर किया। मतलब जैसे कि आप रिलायंस में जॉब कर रहे हो और मुकेश अंबानी ने आपको अपना लंच बॉक्स लाके दिया। इस तरह से एक्सपीरियंस किया था। दैट थर्ड रॉयल विजिट टू डब्बावाला, दैट इज द क्वीन ऑफ नीदरलैंड, क्वीन ऑफ हॉलैंड। हॉलैंड की रानी डब्बावाला से मिली थी 30 मई ऑफ 2018 के मई के 30 तारीख को डब्बावाला के साथ उनकी मुलाकात हुई थी अंधेरी स्टेशन पर। और फाइनली वी हैव 200,000 कस्टमर, 2 लाख हमारे कस्टमर है। सो मोस्टली जो FMCG कंपनीज है वो डब्बावाला के साथ टाइप करती है टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट उसके रिगार्डिंग। सो पिज्जा हट ने उनके 9000 स्टोर पूरे भारत में कंप्लीट किए थे और जो 90,000वां स्टोर था वो मुंबई में था। तो उन्होंने डब्बावाला का नेटवर्क चूज किया था फॉर द मार्केटिंग, फॉर द एडवर्टाइजमेंट। और ये जो 220 वर्ल्ड कप जब इंडिया में हुआ था तो उसका जो इनोवेशन था वो मुंबई में होने वाला था। तो पूरे वर्ल्ड ने
ना कि इंडिया ने और मुंबई ने, पूरे वर्ल्ड ने डब्बावालास का नाम सजेस्ट किया कि मुंबई में है मतलब डब्बावालास के हाथ में ही उसे इनोग्रेट करना चाहिए। तो उस समय डब्बावालास 2018 के हम लोग आइकॉनिक अचीवर्स थे मुंबई के, जो WBR ग्रुप ने हमें फेलिसिट किया। तो उसी तरह से डब्बावालास सिर्फ काम ही नहीं करते, तो डब्बावालास सोसाइटी के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि सोसाइटी का ध्यान रखना ये भी हमारा एक फर्ज है। तो जिस तरह से केरला में फ्लड आया था 2018 में लास्ट ईयर, तो वो टाइम जब फ्लड आया था तो डब्बावालास ने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए, तो चीजें मुझे भेज देती है डब्बावालास के थ्रू विदाउट एनी कॉस्ट। दिस इज द वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड बाय डब्बावालास, बिकॉज़ बैंक भी वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करती है। आफ्टर 4 ट्रांजैक्शन दे आर चार्जिंग फॉर योर ATM, राइट? 4 ट्रांजैक्शन के बाद वो चार्ज करना स्टार्ट करते हैं। सो दिस आर द वैल्यू एडेड सर्विसेज, बट डब्बावाला कभी भी वैल्यू एडेड सर्विसेज की भगवान मान रहे हैं। तो उन्होंने कहा मेरी जब सैलरी मुझे कैश में मिलती थी, 10 साल पहले सैलरी कैश में ही मिलती थी, तो 10 साल 15 साल पहले मुझे जब मेरी सैलरी कैश में मिलती थी, तो ये सैलरी मुझे पता है कि मैं अगर ये लोकल ट्रेन में लेके जाता हूँ तो ये चोरी होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इससे अच्छा डब्बावाला एक ऐसा बंदा है जो मेरा लंच बॉक्स कभी ओपन नहीं करता। तो मैं क्या करता था, वो सैलरी को डब्बे में डालकर अपने वाइफ को सेंड करता था। मतलब डब्बावाला सिर्फ डब्बा डीलर को एक साथ रखने का भी कारण करते हैं, बिकॉज आज के जो लॉ और जो कुछ कायदे कानून बन रहे हैं वो कुछ हमारे पारिवारिक मतलब जो फैमिली के अगेंस्ट ही बन जा रहे हैं, जिसके वजह से आज इंडिया की जो कंडीशन है वो खत्म कहा तो होने जा रही है। तो वो कुछ खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारी जो फैमिली एक्टिविटी है, जो हम एक साथ रहना, ग्रुप में रहना, फैमिली के साथ रहना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो वो कुछ खत्म ना हो जाए, इसके लिए हम लोग भी आज मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग काम करते हैं। एक्चुअली एक दिन क्या हुआ था, कस्टमर ने हमें एक स्टोरी बताई थी कि उनके साथ एक हुआ था कि एक दिन क्या हुआ था कि उनके वाइफ में उनमें एक तगड़ा झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद इतना तगड़ा झगड़ा हुआ था कि वाइफ ने बोल दिया था कि कल मैं अपने मायके चली जाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए करके। तो इसी तरह से रात मतलब सुबह हो गई, सुबह होने के बाद अभी हम इंडियन हैं, राइट? हमारा दिल है लेकिन हम लोग मानते नहीं, राइट? हमारा पैर बहुत होता है बट हम हमारी गलती कभी मानते नहीं, ऐसे हमारे इंसान होते हैं, इंटैक्ट, राइट? तो सुबह जैसे हो गई, विदाउट ब्रेकफास्ट वो अपने काम पर चले गए। तो हमारी इंडियन वाइफ वो थोड़ी ना थोड़ी तो पिघल ही जाती है, राइट? पिघल जाती है। तो उन्होंने सोचा कि चलो लास्ट का लंच बॉक्स है, भेज देते हैं, माना तो माना, नहीं तो गए बाहर। तो उन्होंने क्या किया, लंच प्रिपेयर करके उसमें चिट्ठी लिख दी कि हमारा जो भी कुछ लास्ट नाइट को जो भी झगड़ा हुआ है उसे आप भूल जाइए, मैंने मेरे प्यार से लंच आपके लिए प्रिपेयर किया है, प्लीज टेक इट वेरी विद लॉट ऑफ लव। तो ये लंच बॉक्स जब डब्बावाला लेके गया, तो डब्बावाला मतलब हमारे कस्टमर को पता है कि मेरा लंच बॉक्स 12 बजने के बाद ही आने वाला है, बिकॉज डब्बावाला 12 बजने से पहले किसी को लंच देती नहीं। तो ये बंदा क्या करते थे, 11:30 बजे जाके देखते कि यार मेरा लंच बॉक्स आया कि नहीं आया। तो जैसे लंच बॉक्स मतलब डब्बावाला को उन्होंने देखा तो उनके मन में लड्डू फूटा, अरे शाम फाइनली मेरा लंच बॉक्स मुझे मिल गया। जैसे लंच मैंने ओपन किया, लंच बॉक्स ओपन करने के बाद उन्हें एक अच्छे से मैसेज मिला कि जो भी कुछ है भूल जाइए, मैंने लॉट ऑफ लव के साथ ये आपके लिए बनाया, प्लीज टेक इट। तो उन्होंने क्या किया, अच्छे से वो लंच खाकर 2 मूवी की टिकट खरीदी और उस डब्बे में डाल के अपने वाइफ को सेंड कर दी। इस तरह से 2 लोग बिछड़ने वाले थे, वो एक साथ वापस आ गए बिकॉज ऑफ द डब्बावाला। अगर डब्बावाला वहां पर नहीं होता तो लंच को ही डिलीवर नहीं करता। आपके पार्टी में मैनेज करते समय जो भी खाना बचता है, अगर आपको फेंकने से अच्छा आप एक काम कीजिए, डब्बावाला को डोनेट कीजिए, डब्बावाला को फोन करके उन्हें बुलाइए। सो डब्बावाला वहां पर आके जितना भी लेफ्ट ओवर फूड है, जितना भी बचा हुआ खाना है, वो पिक करके गरीब लोगों में बांटने का काम आज डब्बावाला मुंबई में करते हैं। 20 खाना खाते हैं तो कुछ बच्चे लोग आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि पैसा मत दो, हमें खाना दो। हम लोग भी पैसा दे देते हैं तो वो बंदे बाहर जाके खाते हैं, तो घर का खाना उन्हें नहीं मिलता, होम कुक फूड नहीं मिलता। तो हमारे प्रेसिडेंट ने कहा, हमारे ट्रस्टीज ने कहा कि यू शुड कैरी 2 लंच बॉक्स वंस इन अ वीक। एक लंच बॉक्स आपके लिए और एक लंच बॉक्स उन बच्चों के लिए जिनको घर का खाना नसीब नहीं होता। तो ये फाइनली वी कम अप विद दिस न्यू कांसेप्ट दैट इज अ शेयर। जैसे मैंने कहा कि एक डब्बे वाला, बिकॉज कस्टमर सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर हमने किसी कस्टमर के घर का एड्रेस अगर उस पे ऐड किया गया तो कस्टमर की मतलब उसका एड्रेस पता चल जा सकता है। तो ये एड्रेस भी Thank you very much for coming further.
मेरा क्वेश्चन है कि डब्बा वाला मुंबई में क्यों रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ? See, Why not in other parts of country? right. So पहले क्या होता था कि because of the we are going to expand this in other cities, so we are working it. So our first target is to expand this service in Pune city. Very good, thank you. My question is, why you don't want to change your business model? Because it's always about trust. It's a trust who's working. So why you don't want to change to into a company or having a great manpower to work for that? I already have the corporates. So यहाँ से जो भी we are going to change the business, diversify the business. Like we will come up with a centralized kitchen. Means we are going to cook the food for them, for the customer, and we are going to sell them. So this is a totally Dollars actually get their salaries based on what process. Yeah. And second one is I have seen that bonus is there, but in bracket written that by some customer. What is that? Yeah. You will see it very minutes. आपने इतने concentrate से ये वही word कैसे आपने देखा? मतलब आपका 100% आपने हर एक word presentation का पढ़ा हुआ है. See the bonus. First मैं आपको salary module आपको मैं बताना चाहता हूँ because salary module जो हमारा है वो totally different है. ये corporate की तरह से मतलब calculate नहीं किया जाता. ये salary module ऐसा है कि ground level पर ही मतलब ground level पर ही fund collect कर ground level पर ही उसे distribute किया जाता है. Weekly मतलब ये weekly salary system है. मतलब हर एक week की salary दी जाती है but India में ही monthly salary दी जाती है. तो हमारा जो एक week बच जाता है तो वो week इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ये वेरी व्हाट इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी उसमें भी तो फ्यूल नहीं लगता है नो फ्यूल नो पोल्यूशन इसी टेक्नोलॉजी यूज करना मतलब आपको सो आई टोल्ड यू हमें 1.5 मिनट ही एक कस्टमर को देना होता है राइट. तो हम जब एक 1.5 मिनट हम कस्टमर को देते हैं तो उस समय अगर टेक्नोलॉजी अगर हम लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को वो बारकोड को सिस्टम डालना होगा. अगर हम लोग स्कैन नहीं करेंगे तो हम लोग टाइप भी कर नहीं पाएंगे. ठीक है. तो ये सी हम लोग 9 बजे मोस्टली जो डब्बा वाला मतलब जो मुंबई से मतलब जो कॉर्पोरेट से दूर से डब्बा लाते हैं वो एक्चुअली 8 बजे से स्टार्ट करते हैं. बट हमारे घर में ही हमारे घर में हमारी वाइफ या फिर हमारी मदर होती है जो डब्बा वाले के लिए फूड बनाती है. तो हम लोग जैसे लेट मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं तो वो टाइम हमारा लंच रेडी होता है. तो हम लोग हमारे लंच बॉक्स खुद कैरी करते हैं और खुद ही हमारा लंच बॉक्स ट्रैवल हम लोग के साथ ही रहता है. कल जाते हैं इसीलिए बाद में आप लोगों को डब्बा भिजवाते हैं, लेकिन रिटर्न डब्बा घर वापस ला सकते हैं. हाँ सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आप ट्रैवल मतलब आपको अगर प्रैक्टिस होगी तो ही आप ट्रैवल कर पाओगे मुंबई में. सेम एज दैट जब सब लोग रेजिडेंशियल पार्ट से कॉर्पोरेट में आते हैं उसी तरह शाम को कॉर्पोरेट से रेजिडेंशियल पार्ट में भी जाते हैं. तो सेम रश जो मॉर्निंग में होता है वही सेम रश इवनिंग में भी होता है. तो उससे अच्छा डबल हॉर्स को अभी तो कुछ फायदा नहीं हुआ. मेट्रो की एक अभी मुंबई में स्टार्ट हुई है तो उससे डबल हॉर्स को कोई फायदा नहीं बिकॉज वी रिक्वायर लगेज कंपार्टमेंट. सो मेट्रो में काम करते हैं तो सोशल एंटरप्राइज में आता है जो सोशल एंटरप्राइज के हिसाब से एक तो जो ट्रेन में जाते हैं हम लोग तो ट्रेन का भीड़ का बॉम्बे का जो लोकल का भीड़ है उसमें लोग भी घुस नहीं पाते. लेकिन डबल वाला कैसा घुसते हैं उसमें भी क्या सेपरेट कंपार्टमेंट रहता है. यस करेक्ट. तो वो टाइम दोपहर का जो हमारा लंच हुआ था वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ था. पंतप्रधान मींस प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी. तो उन्होंने डबल हॉर्स को पूछा था कि आपका बैरियर क्या है, आपको सबसे ज्यादा किस वजह से दिक्कत आती है. तो हमने कहा था कि लोकल ट्रेन में ये डब्बा कैरी करना हमें बहुत मुश्किल वाली बात है. तो उन्होंने दूसरे दिन से डबल हॉर्स के लिए एक सेपरेट लगेज कंपार्टमेंट रिजर्व करना मतलब रिजर्व कर दिया डबल हॉर्स के लिए. आज हमारे लिए रिजर्व कंपार्टमेंट राइट ई-साइकिल बिकॉज ई-साइकिल का यूज करना उसके लिए ई स्टेशंस भी होने जरूरी है जहाँ पर पावर स्टेशंस होने जरूरी है. अगर इन केस हमारी ई-साइकिल चलाना कम मतलब प्रॉब्लम में कर दी क्योंकि हम लोग को 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और मैं डिपेंड हो गया कि मेरी साइकिल चार्ज है बट 5 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे 5 मिनट में कवर करना है या फिर 10 मिनट में कवर करना है और उसी समय मेरी साइकिल अगर वर्क करना बंद कर दी तो मुझे पैडल मार के 5 किलोमीटर विदिन 15 मिनट्स कवर करना मुश्किल हो जाएगा. तो उसके हिसाब से अगर चार्जिंग स्टेशन या फिर वो अभी हमारा मॉड्यूल चल रहा है मोस्टली डबल का उसके ऊपर ट्रायल भी हो रहा है. तो जैसे हमने कहा कि टेक्नोलॉजी नाउ हम लोग एक वेबसाइट अगर आपको लंच बॉक्स स्टार्ट करना है तो यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट थ्रू द वेबसाइट. बट अगर आप पूछोगे कि डबल टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते तो वेबसाइट क्यों है तो तिलक में चालू किए थे या वो आपके साथ टाइप कैसे किए? नहीं हमारे साथ ये होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. डबल का नाम यूज करके मार्केट में अपनी हवा कर देना कि डबल के थ्रू हम लोग डिलीवरी करेंगे. तो जैसे डबल से पूछा था कि सर आप हमारे पास से डिलीवर करोगे क्या, बट डबल के लिए टाइप नहीं होता. तो उसकी वजह से हमने कहा था कि हम लोग आपके साथ टाइप नहीं कर पाएंगे. बट कुछ फ्रॉड लोग होते हैं वो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं. मतलब जिस तरह से आपका नाम पूरे वर्ल्ड में है उसी तरह से आपका नाम का मिस यूज करने वाले भी बढ़ जाते हैं.
तो उसी तरह से उनमें से एक पेपर एंड पार्सल कंपनी थी, तो उन्होंने हमारे डबल हाउस का नाम यूज करके खुद की मार्केटिंग कर दी, तो उसी की वजह से हमने उनके अगेंस्ट केस भी फाइल कर दिया। या हमारे फ्यूचर प्लानिंग है, सो वी आर गोइंग टू टारगेट इनटू द बैंगलोर और पुणे। सो फर्स्ट एक रोड में 2 लोग रहने से भी एक दूसरे को जानते नहीं है ठीक से, तो आप जो बोले कि 8 बजे भी कोई कॉल करता है तो सेम डे उसका सर्विस स्टार्ट हो जाता है, तो आप ये केवाईसी किस बेसिस पे लेते हैं, कैसे लेते हैं? केवाईसी जाने वाले हैं, उस वॉचमैन से सबसे पहला सवाल किया जाता है कि ये बंदा इस बिल्डिंग में कब से रह रहे हैं। अगर उन्होंने आंसर किया कि ये बहुत दिनों से रह रहे हैं, मतलब साल से ज्यादा रह रहे हैं, तो ठीक है। तो सेम एज दैट, जिस बिल्डिंग में हमें ये डब्बा उनका डिलीवर करना है, तो वो बंदे को, मतलब वहाँ पर जो बंदे हैं उनको वो कंपनी में जाके हम लोग इंक्वायरी करते हैं कि ये बंदा कब से यहाँ पर जॉब कर रहा है, ये इनका बहुत एक अपने आप एक ब्रांड बन चुका है, तो उसके पहले अगर कुछ एडवर्टाइजिंग टूल्स अगर कर रहे हैं तो क्या एडवर्टाइजिंग टूल्स कुछ यूज किए हैं? बाहर लेते थे टू आइडेंटिफाई द कस्टमर, और 1930 के बाद हमने चिंदी का, मतलब कलर के कपड़े का यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि डब्बास बढ़ गए। सो जैसे मैंने बोलना चाहिए, राइट? सो हाउ यू आइडेंटिफाई हाई इंटरनल एक्सपेंस पर्सन, आप कैसे जज कर पाओगे कि इस बंदे का इंटरनल एक्सपेंस लेवल हाई है? तो उसके लिए पहले एक आते हैं, फिर 2 आते हैं, फिर 3 आते हैं, राइट? जैसे सबसे पहला जो बंदा आता है तो उनके लिए पिकअप पॉइंट्स रहते हैं, कैटरिंग हाउसेस रहते हैं, तो वो बंदे उनसे डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं और अपने वो, मतलब डब्बा ऑलरेडी हमारे 200-300 कैटरिंग हाउसेस के साथ टैग है ऑलरेडी, तो वो बंदे उनसे ऑर्डर कर सकते हैं। और जो डब्बा एक दूसरे से टाई करना या फिर डब्बा कैरेट में डालना, ये टोटली यूनिक है। हमारे साइकिल में एक यूनिक है, ये आपने, मतलब आपने जो साइकिल देखी, ये नॉर्मल सिस्टम है, ऐसे 3-4 पार्ट होता है साइकिल में, तो उसके लिए भी हम लोग को खुद को एक मॉडिफाई साइकिल करना होता है, तो पीछे उसको हुक लगा के उसको डब्बे के हिसाब से उसे मैनेज करना होता है। तो उसी तरह से जब हम ये बैग और ये डब्बा टाइप करते हैं तो उसे वो कंधे पे डालना होता है। जब हम एक कंधे पे डालते हैं तो उसका वेट हो जाता है 40 किलो एक कंधे पर और 40 किलो दूसरे कंधे पर, मतलब मेरा एक एस्पिरेशन था एमबीए के टाइम से आपके बारे में जानने का, वो सपना आज पूरा हुआ कि इनसाइड मेरे को मिल पाया। मैं शुरा हैंडल ब्रदर, तो आई एम वेरी लकी कि उनका सोच इतना अच्छा है कि वो इतना बढ़िया सोच पा रहे हैं। काश मैं जब कॉलेज किया कि इंपीरियल कॉलेज जैसा इंस्टीट्यूट होता जो इतना बढ़िया इंसाइट, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे पा रहा है, तो आई विश कि मैं शायद मेहनत कर रहे हैं घर का खाना पहुंचाने के लिए। और आप इनका फिटनेस देखिए, हम कोशिश करते हैं कि पेट कम करने का, इनका पेट नहीं, मतलब से वही देख रहा हूँ कि आपका पेट ही नहीं है, इसका मतलब घर का खाना का वैल्यू है, ये है। दूसरा, कोई भी काम छोटा नहीं होता, अगर आप ईमानदारी से और दिल से कोई भी काम को लगन से करें तो आप इतने, मतलब इसका आपका इतना सम्मान मिल सकता है। 7000 सर्टिफिकेट्स मिला है इस चीज़ के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं हो सकता। तो घर जब हम जाएं तो एटलीस्ट यहाँ पर डब्बा वाला नहीं है, एक हमारे घर में आते हैं कचरे वाला आते हैं, तो कचरा उठाते हैं। अगर 2 दिन अपना घर का कचरा नहीं उठाएंगे तो घर से बदबू आना चालू हो सकता है। तो लेट्स गिव दैट ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। थैंक यू वेरी मच फॉर अरेंजिंग सच ए नाइस इवेंट। मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपका जो 2 चीज़ है, ट्रस्ट है और इंटीग्रिटी है और लगन है, जो कस्टमर को मानते हैं, उसको मैं इंपीरियल से इस तरह से रिलेट करूँगा कि ये दोनों काम करने के लिए जुनून चाहिए होता है, जो कि दीपक जी में है। दूसरा कि तो पहले बरगढ़ या तो हमारा खेती के लिए माना जाता था या फिर जब लाया है बरगढ़ के लिए पहचाना जाता है। दिस इज ओनली ड्यू टू दीपक एंड इंटरेस्ट। थैंक यू सर। सर टाइम सर
घंटे कसरत है आपके ट्रस्ट में डोनेशंस आ रहा है, आपने कभी सोचा था कि आपके ट्रस्ट नहीं है, ये कभी सोचा नहीं। कभी नहीं वही हम लोग भी वही बात था कि हम लोग ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग के पास इतने सर्टिफिकेट्स आएंगे, इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट को टारगेट रख के हमने काम नहीं किया।